Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 68 as I'll be continuing with exercise 2 of unit 17, degrees of comparison. Students, in my last video, I had completed till the 12th fill in the blank of exercise 2, and today, before I continue with the 13th one, I would like to revise the first 12 fill in the blanks of exercise 2. So please turn your book, please turn the page to page number 68. English grammar book, page number 68. Exercise 2. Fill in the blanks with the suitable degrees of given adjectives. The first one has already been done for you. Now please listen to me carefully as I revise the first 12 sentences. The first one. I had a bad cold yesterday. Today I am feeling much better, but it was worse yesterday. The second one. Bikes are better than cars as they don't create so much pollution. The adjective given in the bracket is good, children, and the comparative degree of good is better. And in this sentence, there is a comparison between the bikes and the car. There is a comparison in two things, so we will be using the comparative degree of good, that is better. So please write better in the second blank. Then the third one. Terrorism is the dash problem of the world. Now, in this third one, the adjective given in the bracket is serious. And if you look carefully at the sentence, you can see the before the blank, which indicates that you need to fill in the blank with the superlative degree of serious. And serious is the adjective which is a big spelling word which has got more than 2 syllables. So we'll be using the superlative degree of serious because blank ke pehle the hai. So the superlative degree of serious is most serious. So our sentence will be terrorism is the most serious problem of the world. Then the fourth one. This restaurant serves dash food. The adjective given in the bracket is good. And in this particular sentence, we are just describing the food of the restaurant. We are not comparing it. So we will be using the positive degree, that is the adjective given in the bracket. As it is, you will write it. So our sentence will be, this restaurant serves good food. Then the fifth one. He runs fast. I can't run as dash as him. The adjective given in the bracket is fast, and if you look carefully before and after the blank, as is there. So beta jab do baar as aata hai, that indicates that you need to fill in the blank with the positive degree. So you will write fast as it is in the blank, that's in the positive degree. So our sentence will be, he runs fast, I can't run as fast as him. Then the sixth one. He runs fast, but I can run dash than him. Now, if you look carefully, then is written after the blank, which indicates that you need to fill in the blank with the comparative degree. And the adjective given in the bracket is fast, and the comparative degree of fast is faster. So you will be writing faster in the sixth line. That is, he runs fast, but I can run faster than him. Now the seventh one. He runs fast, but I am the dash runner in our group. Now, again, if you look carefully, you can observe that the is written before the blank, which indicates that you need to fill in the blank with the superlative degree of the adjective given in the bracket, that is fast. And the superlative degree of fast is fastest. So, he runs fast, but I am the fastest runner in our group. And there is a comparison in more than 2 persons. The comparison is there between all the persons of the group. So we will be using the superlative degree. Now the eighth one. Today is the dash day of the year. Now if you look
carefully. Again, you can notice that the is there before the blank, which indicates that you need to fill in the blank with the superlative degree. And the adjective given in the bracket is hot. So the superlative degree of hot is hottest. So our sentence will be, today is the hottest day of the year. Then the ninth one, you have made a dash achievement. Now if you notice, you can notice that A is written before the blank, which indicates that you need to fill in the blank with the positive degree. Remember children, पॉजिटिव डिग्री के लिए सबसे आसान क्लू है कि ब्लैंक के पहले अगर ए हो, एन हो, वेरी हो या ब्लैंक के पहले या बाद में एस हो तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए दैट यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक विद द पॉजिटिव डिग्री. सो यू हैव मेड अ रिमार्केबल अचीवमेंट. रिमार्केबल एडजेक्टिव ब्रैकेट में था एंड ब्रैकेट में जो भी एडजेक्टिव्स दिए बेटा वो सारे जो है बेटा पॉजिटिव डिग्री में हैं. तो आपको एज इट इज पॉजिटिव डिग्री लिखना है. जो वर्ड ब्रैकेट में वो एज इट इज लिखना है. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू हैव मेड अ रिमार्केबल अचीवमेंट. देन द 10th वन, मिस्टर अंबानी इज द डैश पर्सन इन इंडिया. नाउ इफ यू लुक केयरफुली, ब्लैंक के पहले द है विच इंडिकेट्स कि हमें ब्लैंक में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ जो एडजेक्टिव ब्रैकेट में वेल्दी दिया उसकी सुपरलेटिव डिग्री भरनी. एंड वेल्दी की सुपरलेटिव डिग्री क्या है बेटा? वेल्दीएस्ट. क्योंकि वेल्दी की स्पेलिंग में, आई अगेन रिवाइज, वेल्दी की स्पेलिंग में बेटा लास्ट में वाई आता है एंड वाई के पहले एच आता है विच इज अ कॉन्सोनेंट. एंड द रूल सेज कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में वाई आता है एंड वाई से पहले कॉन्सोनेंट है उनकी हम कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम y को रिमूव करके IR लगा देंगे एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए y को हटा के IST लगा देंगे. सो विल बी फिलिंग द ब्लैंक विद द सुपरलेटिव डिग्री दैट इज वेल्दीएस्ट. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? मिस्टर अंबानी इज द वेल्दीएस्ट पर्सन इन इंडिया. एंड बेटा, for forming the comparative and superlative degree from the positive degree, you need to be thorough with the 7 rules of exercise 1. Then the 11th one, Pooja and Nitesh are dash than you. अब नोटिस करो ब्लैंक के बाद देन है which indicates कि आपको comparative degree भरनी है. So young की comparative degree क्या है? Younger. So Pooja and Nitesh are younger than you. Then the 12th one, Rajat is talkative but Ashwini is even dash than Rajat. इसमें भी नोटिस करो देन है ब्लैंक के बाद which indicates कि आपको कंपैरेटिव डिग्री ही भरनी है. तो टॉकेटिव जो एडजेक्टिव है ब्रैकेट में दिया है, ये एक बिग स्पेलिंग वर्ड है एंड इट इज गॉट मोर देन 2 syllables. तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर टॉकेटिव. सो यू विल राइट मोर टॉकेटिव इन द 12th line. नाउ आई स्टार्ट विद द 13th one. और बेटा जो 13th सेंटेंस है दैट इज इट इज डैश टू डू योर होमवर्क बिफोर watching television and the adjective given in the bracket is good. Now it is dash to do your homework before watching television. अब बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना है. यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इंडिकेट करेगा. ब्लैंक के पहले ना अ है, ना द है, ना ब्लैंक के बाद देन है. तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि इसमें हमें कौन सी डिग्री भरनी है.
Now you read the sentence carefully. It is dash to do your homework before watching television. यहाँ पे दो काम दिए हैं, है ना, कि आप एक तो होमवर्क करना है और दूसरा है वॉचिंग दी टेलीविजन. तो कंपैरिजन कितने चीजों में है? ईदर यू डू दी होमवर्क, है ना, आप अगर अपना जो होमवर्क है वो टेलीविजन देखने से पहले कर लो तो अच्छा रहेगा, है ना. तो जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? वी यूज दी कंपैरेटिव डिग्री. तो यहाँ पे गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? गुड पॉजिटिव डिग्री है. द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड इज बेटर एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज बेस्ट, है ना. अब यहाँ पे हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं कि डूइंग होमवर्क एंड वॉचिंग टेलीविजन. तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? दी कंपैरेटिव डिग्री. तो क्या हो जाएगा? इट इज बेटर टू डू योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टेलीविजन. अच्छा होगा, है ना, कि आप होमवर्क कर लो बिफोर वॉचिंग दी टेलीविजन. सो राइट बेटर इन दी 30 line. So it is better to do your homework before watching television. कि अगर आप होमवर्क टेलीविजन देखने से पहले कर लोगे तो और अच्छा होगा. It is better, है ना. It is better to do your homework before watching television. Now the 14th one. He knows dash about sports than me, and the adjective given in the bracket is much. Now बेटा, मैंने आपको मच और मैनी में क्या डिफरेंस बताया था? आई होप आप लोग को याद हो. मच हम किन के साथ यूज करते हैं? विद अनकाउंटेबल नाउन्स. और मैनी हम यूज करते हैं विद काउंटेबल नाउन्स. एंड ही नोज डैश अबाउट स्पोर्ट्स देन मी. इफ यू लुक एट द सेंटेंस केयरफुली, आपको कहीं पे देन देखा? देन. तो देन क्या इंडिकेट करता है? कि किसी भी सेंटेंस में ब्लैंक के बाद अगर देन आ रहा हो, दैट मीन्स यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक विद द कंपैरेटिव डिग्री. अब मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है? मच पॉजिटिव डिग्री, इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर एंड सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है ना. मच, मोर, मोस्ट. मच पॉजिटिव है, मोर कंपैरेटिव है एंड मोस्ट सुपरलेटिव है. सो ही नोज डैश अबाउट स्पोर्ट्स देन मी. यहाँ पे ही और मी के नॉलेज, स्पोर्ट्स के नॉलेज के बारे में कंपैरिजन हो रहा है. तो ही नोज ज्यादा जानता है मुझसे वो स्पोर्ट्स के बारे में. तो हम कौन सा डिग्री यूज करेंगे बेटा? दी कंपैरेटिव डिग्री. ही नोज मोर अबाउट स्पोर्ट्स देन मी. सो सबसे पहले तो यू शुड बी थरो विद द रूल्स की मच की कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी. सो मच की कंपैरेटिव डिग्री इज मोर एंड सुपरलेटिव डिग्री इज मोस्ट. देन यू नीड टू लुक एट द सेंटेंस केयरफुली कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है. कंपैरिजन दो लोगों के बीच में है या दो से ज्यादा के बीच में. उस हिसाब से यू चूज दी करेक्ट, यू फॉर्म दी करेक्ट डिग्री एंड राइट. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? ही नोज more about sports than me. Fine. I hope all of you have written, children. So you need to be careful. आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है. अगर blank के पहले the है, that indicates you need to fill in the blank with the superlative degree. अगर blank के बाद not necessary कि then immediately blank के बाद ही आएगा. यहाँ आपने देखा इस sentence में then जो है blank के दो words के बाद आया है. But कहीं भी ब्लैंक के बाद अगर देन है तो दैट इंडिकेट्स कि आपको ब्लैंक में क्या करना है. यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक विद द कंपैरेटिव डिग्री. सो ही नोज मोर अबाउट स्पोर्ट्स देन मी. फाइन. नाउ द 15th one. 15 sentences. People wear
dash, then the positive degree given is smart in the bracket, smart, and again a blank, then the adjective given in the bracket is friendly, dresses, in metro cities. Now, अब बेटा सबसे पहले तो आपको मेरे को मीनिंग समझाना है. स्मार्ट तो ऑल ऑफ यू नो. ट्रेंडी का मतलब होता है ट्रेंड में, जो फैशन में चल रहा है. मेट्रो सिटीज जानते हो ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, है ना, चेन्नई, दीज आर ऑल मेट्रो सिटीज, बड़े शहर में. तो लोग वहाँ पे वही कपड़े पहनते हैं जो ट्रेंड में चल रहे हो, जो फैशन में चल रहे हो. तो ट्रेंड से, फैशन से ही ट्रेंडी वर्ड बना है. ठीक है. सो पीपल वेयर डैश एंड डैश ड्रेसेस इन मेट्रो सिटीज. अब यहाँ पे देखो हम खाली डिस्क्राइब कर रहे हैं पीपल के ड्रेसेस को, हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. सो पीपल वेयर डैश एंड डैश ड्रेसेस इन मेट्रो सिटी. यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, खाली हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मेट्रो सिटी के जो पीपल हैं वो किस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं. सो जहाँ पे वी ओनली डिस्क्राइब, हम कोई कंपैरिजन नहीं करते. दैट मीन्स हमें वहाँ पे कौन सी डिग्री यूज करनी, वी नीड टू फिल इन दी ब्लैंक विद दी पॉजिटिव डिग्री. और पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है, जो ब्रैकेट में दी है. तो एज इट इज ब्रैकेट के जो दोनों एडजेक्टिव्स हैं वी आर गोइंग टू राइट. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पीपल वेयर स्मार्ट, ब्रैकेट में स्मार्ट था, एज इट इज वी राइट स्मार्ट, एंड ट्रेंडी ब्रैकेट में एज इट इज वी राइट ट्रेंडी. So people wear smart and trendy dresses in metro cities. जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, हम सिंपल किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या वो सेंटेंस बेटा जहाँ पे किन्हीं भी दो चीजों को इक्वल किसी भी फीचर्स में हम रखते हैं, तो वहां पे हम यूज दी पॉजिटिव डिग्री ओनली. फाइन. So now मैं एक बार 13, 14, 15 सेंटेंस आपको रिवाइज कर दूं, then I'll erase and then write the 16th one. The 13th one is, it is better to do your homework before watching television. Good की comparative degree क्या है बेटा, better. Then the 14th one, he knows more about sports than me. Much की comparative degree क्या है, more. और then है जो indicate कर रहा है कि हमको कंपैरेटिव डिग्री फिल करनी है. देन द 15th वन, पीपल वेयर स्मार्ट एंड ट्रेंडी क्लोथ्स इन ड्रेसेस इन मेट्रो सिटीज. बेटा यहाँ पे वी आर सिंपली डिस्क्राइबिंग, वी आर नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग, सो वी विल बी यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री एज इट इज. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन दीज सेंटेंसेस. सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज एंड राइट the 16th sentence. बेटा अगर आपको रूल्स पता है हाउ टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, एंड आपको कुछ क्लूज मैंने जो बताए हैं कि ब्लैंक के पहले द हो, वो इंडिकेट करता है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी है. ब्लैंक के बाद में देन हो, दैट इंडिकेट्स कि कंपैरेटिव डिग्री फिल करनी है. और ब्लैंक के पहले अगर ए हो, वेरी हो, एन हो, एज बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक हो, वो इंडिकेट करेगा कि आपको ब्लैंक में पॉजिटिव डिग्री फिल करनी है. नाउ द 16th one. The 16 sentences, I prefer to have a dash cup of milk, and the adjective given in the bracket is small. Now look at the sentence carefully. यहाँ पे आपको blank, I prefer to have a dash cup of milk. blank के आगे कौन सा word दिख रहा है, a दिख रहा है. and as said, अगर blank के पहले आपको a दिखे, n दिखे,
very दिखे या as before the blank and after the blank, इनमें से कोई भी word if you see before the blank, these all indicate that you need to fill in the blank with the positive degree, है ना. और यहाँ पे I prefer to have a dash cup of milk, कोई कंपैरिजन नहीं, बस हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, as it is जो एडजेक्टिव दिया हुआ है ब्रैकेट में पॉजिटिव डिग्री में, उसको हम as it is लिख देंगे. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, I prefer to have a small cup of milk. I prefer to have a small cup of milk. Fine. And please keep in mind बेटा कि ब्लैंक के पहले, इसीलिए मैंने इसको सर्कल बनाया ताकि आपको याद रहे कि ब्लैंक के पहले ए हो और एन हो और वेरी हो या बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक एज हो. These all words indicate that you need to fill in the blank with the positive degree. And positive degree means exactly वही adjective जो ब्रैकेट में दिया है, the same adjective you need to write. Fine. Now the 17th one. This is an dash building. And the adjective given in the bracket is enormous. I hope all of you know the meaning of enormous. Enormous means huge, very big. कोई भी चीज जो बहुत बड़ी हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो, उसको हम enormous कहते हैं, है ना. Very big, huge, बहुत बड़ी कोई भी चीज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, enormous. Now, this is an dash building. कोई comparison है, नहीं है. Besides that, blank के पहले क्या है बेटा, n है. Blank के पहले n क्या इंडिकेट करता है, दैट यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक विद द पॉजिटिव डिग्री, है ना. मैंने बताया है ब्लैंक के पहले ए हो, एन हो, वेरी हो या ब्लैंक के बिफोर एंड आफ्टर एज हो. तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर ब्लैंक के पहले हो, दैट इंडिकेट्स कि हमको पॉजिटिव डिग्री जो एज इट इज ब्रैकेट में दी, ब्रैकेट में जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं और उनको आपको एज इट इज लिख देना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एन enormous building. एज इट इज हम लिख देंगे. बस अब ये रूल याद रखो कि अगर ब्लैंक के पहले ए हो, एन हो, वेरी हो, एज डैश एज हो, ये सब इंडिकेट करता है कि आपको ब्लैंक में कौन सी डिग्री फिल करनी है, पॉजिटिव डिग्री. ब्लैंक के पहले अगर 2 हो तो इंडिकेट करता है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी है, और ब्लैंक के बाद में देर हो तो वो इंडिकेट करता है कि आपको कंपैरेटिव डिग्री फिल करनी है. नाउ द 18th one. The sky is covered with dash clouds. The sky is covered with, sorry, I forgot to write the adjective, with dark clouds. Look, there the clouds, look there, the clouds are getting dash, again dark. Now 18 sentences. The sky is covered with dash clouds. Now beta, is 18th में there are 2 sentences. Now let's focus on the first sentence first. The sky is covered with dash clouds, है ना.
यहाँ पे इफ यू लुक केयरफुली द स्काई इज कवर्ड विद डैश क्लाउड्स, है ना। हम खाली डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम खाली बता रहे हैं कि स्काई में डार्क क्लाउड्स है। ये इंडिकेट करता है कि जहाँ पे किसी भी चीज को हम खाली जब डिस्क्राइब करते हैं तो हम कौन सी डिग्री बेटा यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो हम क्या करें, जो डार्क है एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव होता है दैट्स ऑलवेज इन दी पॉजिटिव डिग्री। तो हमने क्या लिख दिया, द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स। फर्स्ट सेंटेंस 18th वाले का है, उसमें हमको पॉजिटिव डिग्री फिल करनी, बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है, हम खाली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्काई में डार्क क्लाउड्स है। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड सेंटेंस, लुक देयर द क्लाउड्स आर गेटिंग डैश, है ना। लेकिन आपने पहले बोला कि द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, बट आप दिखा रहे लुक देयर, है ना, कि वहां देखो, वहां पे क्लाउड्स आर गेटिंग। अब यहाँ पे कंपैरिजन है, जो क्लाउड्स मतलब यहाँ के, है ना, यहाँ के क्लाउड्स का वहां के क्लाउड से कंपैरिजन है कि वहां के क्लाउड्स जो है यहाँ के क्लाउड से क्या हो रहे हैं। अब जहाँ पे दो तरह के क्लाउड्स का कंपैरिजन होगा, व्हेन देयर इज द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे बेटा, दी कंपैरेटिव डिग्री। डार्क पॉजिटिव डिग्री है ना, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है बेटा, डार्कर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, डार्केस्ट, है ना। अब यहाँ पे तो यहाँ के क्लाउड का वहां के क्लाउड से मतलब ज्यादा, वहां के क्लाउड्स यहाँ के क्लाउड से ज्यादा डार्क होंगे, तो हम कौन सी डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, दी कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डार्क। फाइन, सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, लुक देयर द क्लाउड्स आर गेटिंग डार्कर। कि यहाँ पे तो डार्क क्लाउड्स हैं, लेकिन वहां देखो, वहां के जो क्लाउड्स हैं वो और डार्क हो रहे हैं। तो और डार्क मीन्स यहाँ के क्लाउड से वहां के क्लाउड्स का कंपैरिजन, दैट मीन्स वी नीड टू यूज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो क्या हो गया, द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स। फर्स्ट सेंटेंस में 18 के देयर इज नो कंपैरिजन, सिंपली हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हमने पॉजिटिव डिग्री एज इट इज लिख दी। बट सेकेंड सेंटेंस में लुक देयर द क्लाउड्स आर गेटिंग, कि वहां के क्लाउड्स यहाँ के क्लाउड से डार्क है ना, तो यहाँ पे हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव। फाइन, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन the 16, 17 and 18 sentence. Again I am repeating it, please listen to me carefully. 16, I prefer to have a small cup of milk. अ है ब्लैंक के पहले, जो इंडिकेट कर रहा है आपको पॉजिटिव डिग्री फिल करनी है। 17, this is an enormous building. ब्लैंक के पहले एन है, अगेन दिस इंडिकेट्स कि आपको पॉजिटिव डिग्री फिल करनी है। Then the 18th one, the sky is covered with dark clouds. Look there, the clouds are getting darker. I hope all of you have done. Now I'm going to erase these and write the 19th one. And the 19th sentences, it is a dash and sunny day, and the adjective given in the bracket is bright. जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव है वो क्या है बेटा, ब्राइट। अब इट इज अ डैश एंड सनी डे, ब्लैंक के पहले अ है, क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट एज इट इज हमको जो ब्रैकेट में पॉजिटिव डिग्री दी है वो एज इट इज फिल करना है, बिकॉज वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग अ डे। तो हो जाएगा इट इज अ ब्राइट एंड सनी डे। एज इट इज लिख देना है, क्योंकि ब्लैंक के पहले क्या है अ, और अ इंडिकेट कर रहा है कि हम खाली किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे हम डे को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाउ इज द डे इज ब्राइट एंड सनी। तो हम यहाँ पे कौन सी डिग्री बेटा फिल करेंगे, दी
पॉजिटिव डिग्री विच इज गिवन इन दी ब्रैकेट, उसको हम एज इट इज लिख देंगे. फाइन. नाउ आई होप ये बेटा 19 सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए हैं. फाइन. नाउ दी लास्ट वन, the 20th sentence. This wall is in the dash condition, and the word given in the bracket is, sorry, get it repaired. Get it repaired. And the word given in the bracket, the adjective given in the bracket is bad. अब बेटा look at this sentence carefully. यहाँ पे blank के पहले कौन सा word है? The. और जब भी the है blank के पहले, that indicates कि आपको superlative degree fill करनी है. Bad is the positive degree, bad की comparative degree worst, and superlative degree is worst. तो हम इसमें सुपरलेटिव डिग्री क्या फिल करेंगे? वर्स्ट. WORST, वर्स्ट. सो आवर सेंटेंस विल बी, दिस वॉल इज इन द वर्स्ट कंडीशन, गेट इट रिपेयर्ड. नाउ विद दिस आई हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 2. दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. Students, please revise the 7 rules of exercise 1. If you revise those rules, if you are thorough with the rules, there is no problem in solving the exercises of degrees of comparison. That's all for today. Thank you, students. Good day ahead.